In this week, we will discuss some very important sensors which are used in instrumentation and automation systems. So, first of them is distance measurement with infrared sensor. Distance measurement with infrared sensors. So, why use infrared distance sensors? Infrared distance sensors are widely used in mechatronics, robots, automotive systems, home automation, and various other applications that require an accurate medium range non-contact position measurement. ठीक है, medium range non-contact position measurement. The sensor outputs a voltage that correlates to the distance of the remote target by applying a triangulation principle. Triangulation principle, ये अभी हम देखेंगे कि triangulation principle क्या होता है जो इसमें यूज़ हो रहा होता है. Infrared distance sensors are relatively low cost and typically easy to interface to most microcontrollers. ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं फिगर वन. फिगर वन अब फिगर वन पहले हम देखते हैं फिगर वन. अच्छा, फिगर वन में पहले हम देखते हैं ये सेंसर की, ये आपके सामने है, ये सेंसर इंफ्रारेड डिस्टेंस सेंसर मैन्युफैक्चर्ड बाय शार्प. ठीक है, अब इसमें देखें ये लेंस है आपका, एक आपका IRED है. सो आपके पास जो इंफ्रारेड सेंसर होगा इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास लेंसेज हैं और IRED एंड PSD. ठीक है, PSD आपका रिसीवर है एंड IRED आपका ट्रांसमीटर है. अच्छा जी, इसकी पहले हम पिक्चर भी देख लेते हैं. ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल क्या है. अब इसमें देखें IRED जो है सिग्नल आपका ट्रांसमिट कर रहा है जो कि आपका आगे रिफ्लेक्ट होके PSD के अंदर जाएगा. अगर आपका ऑब्जेक्ट करीब होगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा विद रेफरेंस टू दिस वर्टिकल लाइन वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा. ठीक है, दैट इज़ यू कैन से x1, यानी ये जो x1 डिस्टेंस है ये L1 के अकॉर्डिंगली है. और अगर आपका डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हो जाएगा आपके इस सेंसर से, तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको यू विल गेट x2, यानी जो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी और रिफ्लेक्शन के बाद जो आपको डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द रेफरेंस वो कम होगा. तो इस डिस्टेंस की मेजरमेंट से ये जो x1 और x2 है यू कैन मेजर द डिस्टेंस L1 एंड L2. ये आगे हम देखते हैं ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल के अंदर. ये इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. फिगर वन शोज अ टिपिकल इंफ्रारेड डिस्टेंस सेंसर. इट कंसिस्ट ऑफ एन infrared emitting diode IRED, a position sensitive detector PSD, a pair of optical lenses and a signal conditioning circuit, all packaged inside a plastic housing. यानी प्लास्टिक हाउसिंग में सारे ये दोनों चीज़ें होती हैं. एज इंफ्रारेड बीम बाउंसेज ऑफ द सॉलिड सर्फेसेज द PSD receives the reflected beam and the outputs a voltage that correlates to the measured distance. Depending on the sensor being used, several factors may impact its performance, including the reflectivity of the reflecting surface and infrared radiation from the surrounding objects. ठीक है, अच्छा जी, अब ये काम कैसे करते हैं अभी हमने देखा था. ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल. द PSD डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2. द infrared light emitted from the IRED passes through a projection lens which yields a narrow incident beam of infrared light. The diffused reflection of the infrared light as opposed to specular reflection is collected by a receiving lens which focuses it on the surface of the PSD. The position of the focus beam on the PSD is inversely proportional to the distance of the reflecting surface. ठीक है ना, यानी जो आपका x है, x is AF over L. यानी x जो है अगर आपका लेंथ कम है तो आपकी x क्या होगी ज़्यादा, और अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो x आपकी क्या होगी कम. तो दैट इज़ द फार्मूला, x इज इक्वल टू AF ओवर L. ठीक है, x is the position of the focused beam on the PSD sensor reference to the receiving lens's principal axis. A is the distance between the principal axis of both the lenses and f is the focal length of the receiving length and L is the distance of the reflecting surface. तो ये देखें आपका, तो L1 जो है डिस्टेंस कम था उसके अकॉर्डिंगली आपको यू गॉट x1 जो कि ज़्यादा था, और L2 आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंगली आपको x जो मिलेगा x2 दैट विल बी लेसर दैन योर x1. ये आपका f और ये A डिस्टेंसेज हैं जो इसमें आपने यूज़ करने हैं इस फार्मूला के अंदर. अच्छा, तो द सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट. अच्छा, एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2, इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस moves away from the sensor from position L1 to L2, the position of the focused beam on the PSD moves from x1 to x2. The signal conditioning circuitry integrated into the sensor converts the position of the focused beam x into an analog output signal.
ठीक है, जो उसमें से आप कुछ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किटरी आपने लगाई होगी, वो इस पोजीशन को क्या करेगी, आगे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। द आउटपुट सिग्नल मस्ट बी कैलिब्रेटेड अगेंस्ट सेवरल टारगेट्स प्रायर टू बी यूज्ड एज अ डिस्टेंस मीजरिंग सेंसर, यानी इसको आपको पहले कैलिब्रेट अच्छे तरीके से करना होगा ताकि ये डिस्टेंस को एक्यूरेट पड़े। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेंसर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेंसर है, रिफ्लेक्टिव ऑप्टिकल सेंसर। रिफ्लेक्टिव ऑप्टिकल सेंसर, अच्छा ये ऑप्टिकल सेंसर है, ठीक है। वाई यूज ऑप्टिकल सेंसर्स? ऑप्टिकल सेंसर्स कन्वर्ट लाइट इनटू अ मेजरेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी जो लाइट है जो कि हम कहते हैं फोटोन से आपकी बनी हुई है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी इसमें आप देखेंगे कि एक आपका जो है वो लाइट मीटिंग जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इसकी पिक्चर। ये आपका वैसे पिक्चर है, आपको जिस तरह का मार्केट में नज़र आएगा, और इसकी ये आप देखें, इसमें आप देखें इंफ्रारेड IRED, इंफ्रारेड एमिटिंग डायोड, जो कि इंफ्रारेड को एमिट करेगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी आपकी यहाँ पे जो आपका फोटो ट्रांजिस्टर है उसके ऊपर जो है वो एक रेगुलर ट्रांजिस्टर की जगह हम यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे कि जिसकी बेस जो होगा, आमतौर पे बेस पे क्या होता है कि आपका सिग्नल IB होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सिग्नल होगा बेस की जगह, यहाँ पे ये जो आपका रिफ्लेक्टेड सिग्नल आएगा, दैट विल बी योर इनपुट सिग्नल। ओके, ये आगे हम पढ़ते हैं इसको। Optical sensors convert light into a measurable electrical signal. They are typically made of semiconductor material and are used in wide range of applications such as smartphones, assembly lines, machine automation, optical switching, and even edge detection in robots. तो ये देखिए, ये सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ ऑप्टिकल सेंसर्स इज़ टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी दिया हुआ है कि जिसमें आप जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो नहीं करवाते। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइड्स हैं, कॉइल्स होती हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, वो मैग्नेटिकली कपल होती हैं। An important usage of optical sensors is to create electrical isolation in electronic equipment and power transmission lines where unwanted voltage surges are often caused by switching pulses and electrostatic discharge. The use of such sensors prevents voltage surges from affecting the system receiving the signal. अच्छा जी, उसके बाद आते हैं reflective optical sensor. A typical reflective optical sensor is shown in figure 1. It consists of a phototransistor and infrared emitting diode. The emitting diode and detector are mounted side by side on parallel axis. ठीक है, तो ये आपको जो है इस तरह का नज़र आएगा प्रैक्टिकली। अच्छा, to operate the sensor, a reflecting surface such as a retro reflective surface is placed across from the sensor. The surface reflects the infrared light emitted by the IRED onto the photo transistor, यानी वो रिफ्लेक्शन करेगी आपकी जो सरफेस होगी। The further the reflective surface is placed from the sensor, the less light is reflected onto the photo transistor. जितना दूर होगा आपकी जो सरफेस, जितनी दूर होगी उतनी कम लाइट जो है वो फोटो ट्रांजिस्टर को मिलेगी, और उतना वीक सिग्नल फोटो ट्रांजिस्टर को मिलेगा, और वो वीक आउटपुट जनरेट करेगा। द सेंसर आउटपुट्स अ वोल्टेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी जितनी लाइट उसको मिलेगी उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शनल वो अपनी आउटपुट जनरेट करेगा। अब ये देखें, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है जिसकी बात कर रहे हैं। अगर ये करीब हो जाएगी तो ज़्यादा आउटपुट आएगी, अगर दूर हो जाएगी तो कम आपको आउटपुट इसमें मिलेगी। ठीक है, figure 2 schematically illustrates the operation of the sensor. When powered, the IRED emits infrared light, part of which is reflected by the reflective surface onto the phototransistor. अच्छा जी, फोटो ट्रांजिस्टर इज़ अ लाइट सेंसिटिव ट्रांजिस्टर. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल ट्रांजिस्टर. इज़ दैट, अब ये देखें फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में बता रहे हैं, इज़ दैट इन इट्स बेस टर्मिनल हैज़ अ ट्रांसपेरेंट enclosure allowing light to shine on it. The intensity of the reflected light onto the base terminal controls the amount of collector current ICC that flows from the collector to the emitter. Higher intensity light results in higher current flow and thus a larger output. The load resistor RL can be selected such that the photo transistor operates in the active mode. ठीक है, उसको एक्टिव मोड में चलाने के लिए उसकी हम उसकी बाइसिंग करते हैं, मीनिंग दैट द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रिसीव्ड लाइट बट लिमिटेड टू द कॉमन कलेक्टर वोल्टेज. When the amount of light surpasses that level, the output voltage does not increase any further, into which the case the phototransistor is set to become saturated. यानी जिस तरह से एक रेगुलर ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें IB से आप उसको एक्टिव मोड में और उसको सैचुरेशन मोड में
कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और उसकी जो बाइसिंग करते हैं उसमें रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू से आप जो है वो करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसकी भी बाइसिंग करते हैं और इसको प्रॉपर हम एक्टिव मोड में सेट करते हैं। टू ऑपरेट इन एन एक्टिव मोड द लोड रजिस्टर मस्ट बी चोजन सच दैट, यानी इसमें लोड रेजिस्टेंस की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके केस में। यहाँ पे इट मस्ट बी सिलेक्टेड सच दैट वी सी सी इज़ ग्रेटर दैन आर एल इंटू आई सी सी, यानी आर एल जो लोड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई आई सी सी, इससे आपकी जो वी सी सी है दैट मस्ट बी ग्रेटर। तो ये चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ट्रांजिस्टर है तो इसमें थोड़ी सी ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है फॉर मोड ऑपरेशन इन द एक्टिव मोड। When operated in the active mode, a reflective optical sensor can be used as a short range distance sensor. अच्छा, अब इनके साथ एक प्रॉब्लम है, देखें इसमें लाइट जो है वो मतलब लाइट की वजह से ये आउटपुट दे रहा है, तो आपको इसमें जो है जो एम्बियंट की जो लाइट है, जो इन्वायरमेंट की लाइट है, उस पे का एक फ़िल्टर आपको लगाना पड़ेगा। कॉमन प्रॉब्लम विद द रिफ्लेक्टिव ऑप्टिकल सेंसर्स दैट आर पैकेज्ड विद एन IR इज दैट ambient light affects their output, यानी जो आपके environment की light है। To minimize this problem, filtering material is added to the transparent enclosure of the sensor to filter out the visible light। यानी visible light को फिर आपको filter करना पड़ेगा ताकि उससे कोई false output जो है वो generate ना हो आपके सेंसर की। तो इस तरह से हमने देखा कि आप डिस्टेंस को अगेन मेजर कर सकते हैं इस फोटो टाइप के यानी ऑप्टिकल टाइप के सेंसर के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोनार सेंसर, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंसर, जो कि आपका साउंड वेव्स की बेसिस पर काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर है, रोबोट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा जी, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर्स आर पॉपुलर नॉन कॉन्टैक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स इसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होता ना, एंड सेंसर का जो है उस जिसकी मेजरमेंट करनी है, जिसका डिस्टेंस, उसके साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। And the object detection sensors, they are used in a variety of applications such as robotics, unmanned air vehicles, obstacle detection and liquid level measurement in water tanks। ये जो लिक्विड लेवल मेजरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रोबोट्स में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस होती है UAVs के अंदर भी, जिसमें ऑब्स्टेकल से बचता है, उसमें ये सोनार सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। द सिग्नल कंडीशनिंग सर्किटरी इंटीग्रेटेड इनटू द सेंसर कन्वर्ट्स द मेजर डिस्टेंस इनटू a measurable signal, typically a voltage, which can then be processed by a data acquisition system or microcontroller। जब आगे हम देखते हैं कैसे ये काम कर रहा होता है। अच्छा, the ultrasonic distance sensor uses sonar, which is a technique that uses sound propagation to detect the objects, sound waves, ठीक है। Figure 1 shows an integrated ultrasonic distance sensor. The sensor consists of an ultrasonic transmitter, receiver and signal conditioning circuitry। चलिए ये देखें, इसमें आप देखें अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। पहले ये ट्रांसमिट करेगा वेव्स को, ये जाएंगी और ऑब्जेक्ट जो है उससे टकरा के वापस आएंगी। अब देखें इसमें जाने और आने में डिस्टेंस कितना यूज़ हो रहा है, 2D, यानी D इस तरफ राइट साइड पे पहले और फिर वापस पे क्या होगा 2D। तो आपको पता है कि एक बड़ा हमने फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर ही, S इज इक्वल टू VT, यानी S इज़ इक्वल टू डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं वेलोसिटी को जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इसमें डिस्टेंस आपका कितना है 2D, 2D इज इक्वल टू VT, तो D विल बी इक्वल टू हाफ VT। और इसमें V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स की वेलोसिटी है वो अभी हम देखते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड है उसका, यानी ये देखें 343 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2, द ट्रांसमीटर जनरेट्स अ स्फेरिकल कोन शेप्ड अल्ट्रासोनिक पल्स और पिंग which when reflected off a nearby object is picked up the receiver। अच्छा, is picked up by the receiver। The signal conditioning circuit measures the time it takes for the ultrasonic ping to travel to the object bounce off and be picked by the receiver। यानी उसको जब ट्रांसमिट कर रहा होता है ना तो वो फिर टाइम नोट करना शुरू कर देता है कि वापस जब उसको मिलती है तो ट्रांसमिट से लेकर रिसीव होने तक उसको कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो वो टाइम उसने नोट कर लेना T, और फिर उसको वेलोसिटी से ज़रब दे देनी है और उसको हाफ कर देना है। हाफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हाफ करना ज़रूरी है क्योंकि डिस्टेंस है 2D। सिंस साउंड वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड कांस्टेंट स्पीड 343 meter per second in dry air at 20 degrees C, the speed of the transmitted and reflected ping will be same, and hence the distance d from the reflecting object can be determined using the equation 1। ये equation 1 है,
यहाँ पे लिखा नहीं है, अच्छा d is equal to 1/2 ct, where d is the distance between the sensor and the reflecting object, c is the speed of sound, t is the time it takes for the transmitted ultrasonic ping to travel from the transmitter back to the receiver. Ultrasonic distance sensors typically generate several synchronized ultrasonic pings per second, यानी 1 सेकंड के अंदर वो बहुत सारी जो है वो इस तरह के पिंग्स करते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक जो है आपका डिस्टेंस सेंसर है, ठीक है, जिससे आप डिस्टेंस d को मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग t, यानी आपका टाइम मेजर किया जा रहा होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, c कह लें या इसको v कह लें, c नॉर्मली स्पीड ऑफ लाइट के लिए भी यूज़ होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये 343 मीटर पर सेकंड है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, डिवाइडेड बाय हाफ। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंसर जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंसर है इंडस्ट्री में, वो होता है पीजो वाइब्रेशन सेंसर। पीजो वाइब्रेशन सेंसर, पीजो वाइब्रेशन सेंसर, इनमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यूज़ होती हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होती हैं कि ये ऐसा मटेरियल होता है कि जिस पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इस पर वोल्टेज डेवलप होते हैं, यानी इसमें वोल्टेज डेवलप होंगे जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। और ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल क्या होता है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल देंगे तो ये साउंड वेव्स फिर या प्रेशर वेव्स जनरेट करेगा, ठीक है, तो ये 2 वे सिस्टम है। तो नेचुरल एंड मैकेनिकली इंड्यूस्ड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली जो आपकी रोटरी मशीनरी होती है, अब टर्बाइंस हैं, जनरेटर्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, जो रोटरी मशीनरी है जो रोटेट करती हैं, उनमें वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर उसमें शार्प मिसल लाइन हो जाती है या कोई और मसले होते हैं तो उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और जब वो चीज़ ख़राब होने लगती है तो उसकी वाइब्रेशन ह्यूज हो जाती है, ठीक है। तो नेचुरल एंड मैकेनिकली इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस कॉमनली अकर अराउंड अस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेजर द वाइब्रेशन बिकॉज एक्सेसिव वाइब्रेशन कैन शॉर्टन द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। For example, excessive vibration can cause fractures in the fuselage of an airplane, एयरप्लेन की जो बॉडी होती है, और cause solder joints to break free in electronic circuit boards। वाइब्रेशन के देखें, वाइब्रेशन अगर होती तो आपके जो वायर्स के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो टर्मिनेशंस होती हैं, वो लूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इशू होता था, हम जो जनरेटर पे भी हम कर रहे होते थे वहाँ वाइब्रेशन काफ़ी होती, तो उसकी वजह से हमारी जो टर्मिनेशंस थी वो उसकी हम बहुत रेगुलरली उसकी टाइटनिंग करते रहते थे। In rotating machinery, imbalances in shafts and other rotating components cause unwanted vibration, which could lead to excessive wear and eventual failure. Rotating machinery, imbalances in shafts and other rotating components cause unwanted vibration, which could lead to excessive wear and eventual failure. However, not all vibrations are unwanted. When modeling a mechanical system, vibrations are often introduced to the system to determine its dynamic response. ये एक और बात कर रहा है यहाँ पे कि जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं सिस्टम की, तो हम खुद से इनपुट वाइब्रेशन देते हैं ताकि हम उसकी आउटपुट का रिस्पॉन्स मेजर कर सकें। अच्छा जी, व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है? मैनी naturally occurring materials such as quartz crystal and polycrystalline ceramics exhibit a property called the piezoelectric effect. Piezoelectric effect, as shown in figure 1, when a force is applied to a piezoelectric material, it causes positive and negative ions to accumulate on the opposite surfaces of the material, रिजल्टिंग इन अ चार्ज बिल्डअप, यानी इससे वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा आपका। जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वोल्टेज इस पर पैदा होगा। ये देखें, जैसे आप ये देखें, रेस्ट पे क्या है कि कोई वोल्टेज नहीं है, लेकिन जब आपने फोर्स अप्लाई की तो इसमें चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रॉपरली, प्लस एक तरफ हो गए, नेगेटिव दूसरी तरफ हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि इसके क्रॉस आपको वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा। द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये मैं अभी डिस्कस कर चुका था आपसे, विच मीन्स व्हेन अ वोल्टेज पोटेंशियल इज अप्लाइड टू piezoelectric material, it causes the material to vibrate, यानी ये रिवर्सिबल होता है कि अगर फोर्स देंगे तो वोल्टेज जनरेट होंगे, वोल्टेज देंगे तो फोर्स जनरेट होगी, वाइब्रेशन जनरेट होगी, साउंड वेव्स जनरेट होंगी, वाइब्रेशन वेव्स जनरेट होंगी। दिस रिवर्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स इन पीजोइलेक्ट्रिक बजर्स। ये पीजोइलेक्ट्रिक बजर भी आते हैं जिसको आप सप्लाई देते हैं तो उसमें साउंड वेव्स जनरेट होती हैं, सच एज अल्ट्रासोनिक बैट्स। अच्छा जी, a piezo vibration sensor. The piezoelectric effect is the underlying principle of many vibration sensors. Using these sensors, one can measure vibration, rate of change of acceleration, displacement, and shock. Figure 2 illustrates the film type piezo vibration sensor. Film type, ये देखें, ये फिल्म टाइप यानी पतला सा आपका पीजो वाइब्रेशन सेंसर है। जो आपके ट्रांसमीटर्स हैं जो ऑयल एंड गैस में हमारे पास उसमें भी जो
ये यूज़ होते थे। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं, और उससे जो फिर वोल्टेज जनरेट होता था वो आगे सिग्नल कंडीशनिंग, तो वो जो वोल्टेज जनरेट होंगे प्रेशर वेव से ट्रांसमीटर के, उसको सिग्नल कंडीशनिंग के थ्रू फिर आगे हम 4 to 20 मिली एम्पेयर्स जो है उससे हम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर इनकैप्सुलेटेड इन अ क्लियर प्रोटेक्टिव फिल्म व्हेन द सेंसर इज मैकेनिकली फ्लेक्स्ड फ्रॉम इट्स neutral axis. A high strain is created within the piezo element, which generates a large voltage. When the sensor is fixed by means of direct contact, the device acts as a flexible switch because the generated output is sufficient to trigger an electric circuit. When the sensor is allowed to freely vibrate, it acts as an accelerometer measuring the rate of change in acceleration. ठीक है। when used as an accelerometer, the induced vibration is proportional to the measured output of the sensor. In this type of vibration sensors, by adding a mass or adjusting its clamped position, one can adjust or fine tune its to achieve a desirable sensitivity or natural frequency. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं श्मिट ट्रिगर सर्किट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सर्किट है जो कि आपका जो है सिस्टम्स के अंदर जो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। अभी हम देखते हैं इसमें इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। द श्मिट ट्रिगर सर्किट इज़ अ लॉजिक इनपुट टाइप दैट प्रोवाइड्स हिस्टैरिसीस और टू डिफरेंट थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल्स फॉर राइजिंग और एंड फॉलिंग एज। ये देखें, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू डिफरेंट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इस ये दो तरह के थ्रेशोल्ड आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी दो थ्रेशोल्ड आपके पास, अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड। This is useful because it can avoid the errors when we have noisy input signals from which we want to get scale wave signals. यानी नॉइज़ है ना असल इशू, कि नॉइज़ आपके सिग्नल को करप्ट कर देती है। अब आप क्या चाहते हो कि आप अपने सिग्नल को एक्यूरेटली रिट्रीव करना चाहते हो, तो उसमें जो है ये आपका श्मिट ट्रिगर सर्किट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ नॉइजी इनपुट सिग्नल। अच्छा, इसमें पहले हम सर्किट यहाँ से देख लेते हैं। जैसे अब ये देखें, एक ये है सिंगल थ्रेशोल्ड, यानी इसमें सिर्फ एक थ्रेशोल्ड है कि अगर इसे ऊपर है तो हाई है, इसे नीचे है तो लो है। तो इसमें आप देखें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या होगा, हाई। उसके बाद थ्रेशोल्ड से नीचे गई है वेव ड्यू टू नॉइज़, तो इसमें देखें लो डिटेक्ट हुआ, फिर हाई डिटेक्ट हुआ। तो आप देख लें कि इसमें ग्लिचेस कितनी ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्लिचेस इसके अंदर आ रही हैं। तो इसके मुकाबले में आप राइट साइड पे देखें कि आपका अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड जो श्मिट ट्रिगर सर्किट है उसमें आपने दो थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दी, अपर और लोअर। अब इसमें होता क्या है कि जैसे अपर को टच करेगा ना, यहाँ ये पॉइंट अपर थ्रेशोल्ड, तो इस पॉइंट से लेके लोअर थ्रेशोल्ड तक ये आपका एक लेवल इसको डिटेक्ट करेगा। और इसी तरीके से ये लोअर थ्रेशोल्ड जब शुरू होगा तो यहाँ से लेके नेक्स्ट आपका जब अपर थ्रेशोल्ड जब तक नहीं आ जाता तो ये अगला लेवल उसको डिटेक्ट करेगा। तो ये आपकी जो डिटेक्शन है वो इससे बड़ी अच्छी और स्मूथ हो जाती है अपर और लोअर थ्रेशोल्ड की वजह से। अच्छा जी, for example, if we have a noisy input signal like this is meant to have two pulses. A device that has only one set point or threshold could get incorrect input and it could register more than two pulses as shown in the illustration. And if we use the Schmitt trigger for the same input signal, we will get a correct input of the two pulses because of the two different thresholds, so that the primal function of the Schmitt trigger to convert noisy scale waves, sine waves और slow edge inputs into clean scale waves। यानी आपका जो नॉइज़ का इफेक्ट है वो इसकी मदद से आपका अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। अच्छा जी, there are many logic ICs that have built-in Schmitt triggers on their inputs, but also it can be built using transistors or easier using an operational amplifier or comparator or just adding some resistors to it and a positive feedback। अब हम देखते हैं कि इसका एक सर्किट देखते हैं, एक एग्जांपल है इसके सर्किट की। देखें इसमें आप देखें ये आपका पॉजिटिव फीडबैक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2 और आपने नेगेटिव पे इनपुट दी हुई है, ठीक है। और इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। देखें इसमें अब क्या है, VUT अपर थ्रेशोल्ड और VLT लोअर थ्रेशोल्ड। तो जैसे ये अपर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, ठीक है, और वहाँ से लेके जब तक ये लोअर थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर जाता तो इसकी आपको आउटपुट लो मिलेगी। लो आउटपुट क्यों मिलेगी, क्योंकि ये आपकी इनपुट है ना, इनपुट आपने नेगेटिव को दी हुई है। यानी जब आपकी इनपुट नेगेटिव ज़्यादा हो जाती है तो इसकी आउटपुट क्या होती है, लो। और आउटपुट हाई कब होगी, जब आपकी V पॉजिटिव विल बी ग्रेटर दैन V नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लो आउटपुट मिलेगी।
और जब इसकी जो है इनपुट आपकी वी लोअर थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगी तो इसकी आउटपुट आपको हाई मिलेगी। कब तक हाई मिलेगी? इस पॉइंट तक, पॉइंट नंबर 3 तक, और 3 से लेके पॉइंट नंबर 4 तक आपको फिर ये लो मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका ऑपरेशन था। अब ये डायग्राम जो है हिस्टैरिसीस वाले डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें एक्स एक्सेस पे क्या है आपका इनपुट वोल्टेज, वाई एक्सेस पे क्या है आउटपुट वोल्टेज। तो पहले हम यहाँ से शुरू होते हैं। देखें इसमें वी इन ग्रेटर देन वी यू टी, यानी यहाँ पे है पॉइंट नंबर 1 पे। तो इसमें आप देखें कि आपके आउटपुट क्या हो रही है? लो। तो ये आपके आउटपुट क्या है? लो। लो आउटपुट है। कब तक है? जब तक कि आपकी इनपुट इस एल टी को टच करती है। जब इस एल टी से जो है, जब इस एल टी को टच करेगी तो ये क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी आपकी आउटपुट। ये देखें लेफ़्ट को गया, उसके बाद ये ऊपर हाई को आ गया। और कब तक हाई रहेगी? जब तक कि आपकी इनपुट बढ़ के यूटी को टच नहीं करती थी। ठीक है, ये देखें ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जैसे यूटी को टच करेगी तो आपकी क्या होगी? आउटपुट फिर लो हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी आउटपुट दोबारा से लो हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है ये एक, आप इसको कह लें कि ये डेड बैंड, इसको बोलेंगे डेड बैंड, जो हिस्टैरिसीस में जिस तरह से हमने पढ़ा हुआ कि हिस्टैरिसीस में जो है वो हिस्टैरिसीस फिनोमेनन भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये आपका ये डेड बैंड आता है। तो ये थी वर्किंग आपकी श्मिट ट्रिगर सर्किट की, कि जिसके अंदर हम एक की बजाय दो लेवल्स यूज़ करते हैं, अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो डिटेक्शन होती है नॉइज़ की वजह से, जो करप्शन हो रही होती है आपके बिट्स की, उसको आप अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली आप उसको सिग्नल को रिट्रीव कर सकते हैं। उससे जो नॉइज़ का इफेक्ट है वो उससे रिमूव कर सकते हैं। तो ये था श्मिट ट्रिगर सर्किट, जो कि सिग्नल कंडीशनिंग जो है, बेसिकली सिग्नल कंडीशनिंग है ना, ये सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा जी, एक अब आज के लिए जो लास्ट वन सेंसर है डिस्कशन का, वो है PIR सेंसर। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी। हम ये वाली PIR बेस्ड लाइट्स लगा रहे थे कि जिसमें जब मूवमेंट होती थी, कोई बंदा होता था वहाँ पे, तो क्या होता था कि ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी। और जब मूवमेंट इसकी जो है वो ख़त्म होती थी, वहाँ पे कोई मतलब कोई पर्सन नहीं होता था वहाँ पे, तो ये क्लोज़ हो जाती थी, लाइट खुद ब खुद जो है बंद हो जाती थी। तो पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, PIR सेंसर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर दैट मेजर्स द इंफ्रारेड लाइट रेडिएटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इन इट्स फील्ड ऑफ व्यू। यानी ये IR बेस्ड जो है बेसिकली काम करता है। अभी हम देखते हैं कि ये बेसिकली क्या करता है। ये हीट पैटर्न पे काम कर रहा होता है। दे आर मोस्ट यूज्ड और ऑफन यूज्ड इन PIR बेस्ड मोशन सेंसर्स। ठीक है, यानी इन जो आपसे एक ह्यूमन से या कोई जानदार से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं उसकी बेसिस पे ये काम कर रहा होता है। द PIR सेंसर itself has two slots in it. Each slot is made of special material that is sensitive to IR. When the sensor is idle, both the slots detect the same amount of IR. ये देखें, मैं इसकी तस्वीर देखूँ, जैसे आप ये देखेंगे PIR सेंसर है, इसमें आपकी जो है वो दो आपकी डिटेक्टिंग एरिया है, दो डिटेक्शंस है। तो अगर तो कोई भी चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो दोनों को सेम, दोनों की आउटपुट सेम होगी और इनका जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होएगा। यानी ये डिफरेंशियल बेसिस पर काम कर रहा होता है, डिफरेंशियल जिसमें ये डिफरेंस ले रहा होता है। तो इसमें देखें, when the sensor is idle, both slots detect the same amount of IR, the ambient amount radiated from the rooms or walls of the or the outdoors. When a warm body like a human or animal passes by, it first intercepts one half of the PIR sensor. एक हाफ को ये इंटरसेप्ट करेगा तो डिफरेंशियल आउटपुट आपके पास आ जाएगी, which causes a positive differential change between the two halves. और when the warm body leaves the sensing area, the reverse happens. यानी उसमें क्या होगा, फिर वो नेगेटिव पल्स आएगी उससे जाते हुए, तो उससे भी एक डिफरेंशियल आउटपुट जनरेट होगी, वेयर बाय द सेंसर जनरेट्स अ नेगेटिव डिफरेंशियल चेंज। दीज चेंज पल्सेस आर व्हाट इज डिटेक्टेड। तो ये देखें, जब वार्म बॉडी यहाँ से एंटर हो रही होगी तो यहाँ एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगी, आपको पॉजिटिव चेंज आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस माइनस दिस। और जब बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तो दिस माइनस दिस आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यानी आपको जो एज मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो ये आपको पल्सेस जो हैं वो आपके आउटपुट पे मिलेगी। इन आउटपुट पल्सेस को आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं आगे, जो भी सर्किट में आप इसको फर्दर यूज़ करना चाहें। आप रिले से एनर्जाइज करवा लें, इससे ट्रांजिस्टर ऑपरेट करवा लें, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट इसे डिज़ाइन करना चाहें। तो ये है PIR बेस्ड सेंसर्स की वर्किंग, कि PIR बेस्ड सेंसर्स जो है वो किस असूल के तहत काम कर रहे होते हैं। तो इस वीक के अंदर जो है वो हमने जो है कुछ सेंसर्स को डिस्कस किया, और श्मिट ट्रिगर सर्किट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सर्किट है सिग्नल कंडीशनिंग में, उसको डिस्कस किया। इस वीक के लिए इतना ही, बाकी कंटेंट्स हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।